مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. جی ہاں. فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں. اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں, کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایک تقریر کی 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن. اور جیسا ڈسکس کیا پہلے انٹرویو میں کہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے, اس کے بعد جو 8 پوائنٹ سے ہر مسلمان نہیں کر سکتا, جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ کر سکتا ہے, لیکن پہلے 7 پوائنٹ ہر کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں. اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا, لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے. اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس پہ پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث, ریزلٹس ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر, ایک دن کیا 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلام معذرت, وہ کہتے ہیں اتنی شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے, تفسیر پڑھ چکا ہے, وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, دے پلان اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان, اللہ از دا بیسٹ آف پلان. یس. تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یس. ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے پچھلے سال, 1 سال پہلے, ابھی 7 اکتوبر تو لاسٹ ایئر کیے, اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیے. ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں, ایک دن کیا 1 گھنٹے, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں ممکن ہے کیا نہیں اللہ کے لیے؟ بالکل جی. کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو وہ بیسٹ ہوا. مان لو اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا, فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا, اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف دا غیر مسلم کی بات کریں, 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. یس. اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگریڈ ود بیکاز دے ڈونٹ نو واٹ ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے, کئی ہو گئے. جی جی, تاریخ بہت ہے, بھری ہوئی ہے, چاہے ہٹلر کا لو, چاہے مسولینی کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی, کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد, ویک بعد. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے, برابر. تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے. ہم جو پڑھتے قرآن میں کس سے, حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا, ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے, تیرے نام میں قربان کر دوں. جی. دیر از کمپٹیشن. وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے, اس کا پاؤں کٹ گیا ہے, ابا رو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس. غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کون اللہ ہے. اتنے مشکلات کے بعد, خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, اللہ کی تعریف ہو. یہ کیسا مذہب ہے. اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے, اس وجہ سے منیمم اونلی بیکاز آف غازہ. لاکھوں, 1 سال میں لاکھوں. ایک یورپ کا ہیڈ بولتا ہے کیا اونلی ان یورپ 40,000 اس ٹائم, 3 مہینے میں, ابھی تو 1 سال ہو گئے. جی جی. تو لاکھوں تو سیفلی بول سکتے ہیں. اس کے بعد آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان ملک کو چھوڑو, مسلمان ملک میں مسلم زیادہ, تو نان مسلم ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپین کنٹری ہو. وہ پروٹیسٹ میں کون زیادہ ہے, مسلمان ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم. پبلک اوپینین بڑے ڈیولپ ہوئے وہاں, 10,000 لاکھوں میں, لاکھوں کی تعداد میں. آج کے تاریخ میں جب انٹرویو لیتے تو بولتے کہ 80% از ان فیور آف پیلسٹائن,
सम रिपोर्ट से 90% उल्टा हो गया इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। और आप समझते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं होता था। जो शहीद हुए हैं वो उन्होंने, ये जो 1 महीने में जो फलस्तीन लोग ने दावत दी वो नामुमकिन है। इस्लाम कबूल की वो लोग को तो छोड़ो, जो लोग प्रोटेस्ट में मिलियंस लोग आए, ये मुमकिन नहीं होता था। अगर एक दिन में अल्लाह ताला उनको शिकस्त दे देता था इजराइल को और फलस्तीन को फतेह देता था, ये होता ही नहीं था। तो ये हमारे दिमाग से हम कह रहे हैं, हम जानते नहीं, अल्लाह जानता है। इसीलिए कुरान की एक आयत है कि आप उस चीज़ को चाहेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है और वो चीज़ से नफरत करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। आप नहीं जानते, अल्लाह जानता। तो हम जो सोच रहे, एक मोमिन कभी बोलेगा ना अल्लाह गलत है, हमको इसका राज पता नहीं बोल सकते आप अभी, लेकिन राज मालूम पड़ रहा है। तो जो मोमिन जो है ये राज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अल्लाह कर रहा है, या इसमें क्या हिडन राज है, हमको कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा, आज तो पता चल गया हमें सर। तो मेरे नज़दीक जो ये दावती काम ये गाजा के लोग ने किए, और हम इस दुनिया में क्यों हैं? इम्तिहान के लिए, हमारे लिए भी इम्तिहान। हम क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है गाजा के लोग से, मुसलमान से ले रहा है, गैर मुस्लिम से ले रहा है। वो गैर मुस्लिम से पूछ रहा है, आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करें आपने क्या किया इधर? तो फलस्तीन लोग तो 90% से ज़्यादा एकदम फुल मार्क्स से, जो लोग शहीद हैं लोग तो जन्नत में। तो मैं दुआ करता हूँ हर रोज़, मैं ताज्जुद में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे शहीद बना, उनकी दुआ कबूल हो रहे। तो मैं तो उनसे काश में उधर होता। सर आप बहुत खूब तकाबुल दीन पे बहुत बात करते हैं। मैंने सवाल पूछा था, दोहरात भी देता हूँ, लेकिन एक राय ये भी है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, कैसे इसको कंपेयर करेंगे? सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और हम ये उसके मज़ाहिर देख भी रहे हैं। आप बात करते हैं बैनुल मज़हब हमांगी मुश्तरकात की, थोड़ा सा इस पे ज़रा बता दीजिएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जैसे मैंने कहा था, कुरान का एक हल है इसमें। अच्छा, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह ना बुद इल्लल्लाह, जब एक अल्लाह की इबादत करें। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में डिफरेंसेस है, हम डिफरेंस पे बात नहीं करें, यकसानियत पे बात करें। यकसानियत है, यकसानियत पे बात करो और उनको बताओ कि सबसे अहम है अल्लाह ना बुद इल्लल्लाह। आप कोई भी सिविलाइजेशन से हो, चाहे चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी मज़हब फॉलो करते हैं, हर मज़हब की आप तहकीक करेंगे, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, सब की बुनियाद है कि अल्लाह एक है। वो बिला शुबा उनके किताबों में लिखा गया, लेकिन वो भटक गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, जो सूरह इखलास की आयत है कुरान के अंदर, जो सूरा है वो बाइबल में भी है, वेदा में भी हो। तो पहली बार जब मैं लेक्चर दिया हूँ सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, तो बहुत लोग तो मुझसे नाराज थे मुसलमान। जब दुबई में लेक्चर दिया तो प्रोटेस्ट हुआ मेरे खिलाफ, पैम्फलेट बची, अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई मैंने बोला लेक्चर तो सुनो, अगर मैं कोई कुरान हदीस के खिलाफ बात को, फिर मेरा गिरबान पकड़ो ना। जी आप लेक्चर ही नहीं सुने, खिलाफ हो रहे, हो ही नहीं सकता है। आप बगैर सुने जो है वो आप नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक्सपोर्ट होते थे हिंदुइज्म पर, फिर बोले नो प्रॉब्लम, आपको इस्लाम का इल्म है, मैं उस पर कोई ये शक नहीं मुझे, हिंदुइज्म का इल्म है आपके पास। तो जब मैं आयत कोट किया, श्लोक का कोट किया, तो लोग अरे माशाल्लाह, तो और उससे हिंदू काफी मुतासर हो गए इस्लाम को बोलते। सर अब यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हज़रत इमाम इकबाल कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दूसरी तरफ एक राय है कि सब तो आपकी नसीब जो है वो तो सब अल्लाह की तरफ से होता है, इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड। इस ताल्लुक को जरा बयान कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा होता है कि मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा है, दूसरी तरफ कहते हैं अमल करो। ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब भी इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल जवाब। सर तकदीर एक ईमान का पिलर है। यस, ईमान का एक पिलर है, हमें तकदीर में मानना चाहिए, उसमें हक नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं तकदीर की मानी क्या है। और आप जैसा कहते हैं कि तकदीर में लिखा है तो हो जाएगा, तो अगर मेरे तकदीर में लिखा है कि मैं शराब पीऊँ तो मेरी गलती क्या उसमें? अल्लाह की गलती, नौज़ बिल्लाह। मेरे तकदीर में लिखा है कि मैं मर्डर करूँगा और मैं मर्डर करता हूँ, तकदीर किसने लिखा? अल्लाह ने, अल्लाह की गलती, नौज़ बिल्लाह। और ये सोचना सही है अगर आप तकदीर के कॉन्सेप्ट को जानते नहीं तो। अगर तकदीर में लिखा है क्या मैं जिना करूँगा और मैं कर रहा हूँ तो गलती मेरी, तकदीर में तो अल्लाह ने लिखा। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि आप तकदीर को समझना चाहिए और इस्लाम को समझना चाहिए। और मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लासरूम में सपोज 100 बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहा है उनको, हाँ,
साल के आखिर में टीचर एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलेगा, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलेगा, ये स्टूडेंट फेल होएगा। एग्जामिनेशन होता है, ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलता है जी, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलता है, ये स्टूडेंट फेल होता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट फेल होगा वो ये कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट किया कि मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हुआ, हो सकता है? वो टीचर बोलता भाई ये ज़हीन था, होमवर्क करता था इसलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये आदमी शैतान था भाई मेरे क्लास अटेंड नहीं इसलिए फेल होगा। तो ये प्रिडिक्शन है, वो अलग बात है, ये इंसान का प्रिडिक्शन है, गलत हो सकता है। 99% सही आएगा। अल्लाह ताला को इल्म गैब है। तो अल्लाह ताला जब तकदीर में लिखता है तो अल्लाह इज द डिसीजन इज योर्स, अल्लाह इज गिवन द ह्यूमन बीइंग द फ्री विल। जी, आपको आपके हिसाब से फ्री विल दी, तो चॉइस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक, नो अल्लाह ताला इज इल्म गैब, so because as ilm ghaib he knows what you're going to choose. ओके, So Allah writes in advance क्या ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके। तो अल्लाह जानता है आप चीटिंग करेंगे तो लिख दिया। तो अल्लाह लिखने की वजह से आप चीटिंग नहीं कर रहे, आप चीटिंग करने वाले थे, अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, सो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा, खुद ही को अगर इतना बुलंद कि हद तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते रहता क्या, समझ रहे? आपने शायरी से पूछा, मैंने शायरी से जवाब दिया। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रॉस रोड पे आते हैं सर, क्रॉस रोड के अंदर 4 रोड है, 1 2 3 4, आप कोई भी चुन सकते, आप चुनते रोड नंबर 2। तो अल्लाह ताला लिखता है कि आप बराबर 30 सितंबर को आप चौराहे पे आएंगे, आपके पास चॉइस था रोड नंबर 1 2 या 3 या 4 पे, आप 2 चुनते। तो अल्लाह ताला लिखता है कि 30 सितंबर को भाई साहब आएंगे रोड पे, लेकिन चॉइस किसकी थी? चॉइस किसकी? आपकी। आप चारों में कहाँ भी जा सकते थे। बहुत खूब। तो अल्लाह ताला इनमें गैप है। फिर आप आगे बढ़ते और 3 रोड आते, A B C, आप चुनते रोड ए, चॉइस किसकी थी? आपकी। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको हकीकत दिखा दी कुरान और हदीस में, सही है, आप उस पर अमल करते कि आपका चॉइस। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान में शराब हराम है, ठीक है, वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी। तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है, ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर, वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब दुआ करने वाले अल्लाह को ये भी पता आप दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर, इल्म गैब है, अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में यही शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह पास, अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं, अल्लाह ताला ये भी इल्म है कि वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद कर इतना बुलंद, तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है गैब है। तो ये बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे इसलिए मैं शराब पीऊंगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं, आपके पास हक चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे, खुद पूछे बताते। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलते चलते पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। जो जब मिलता हूँ उनसे इंडिया के बाहर जब मिलता था तो सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तानी फ़ैन होते थे मिलने वाले। मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी कुरान को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि अरबी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें। रोज़ चाहे 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है, और कुरान हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे मुश्किलात का हल है। और पीस आपको मिलेगा कुरान, और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा, 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ, और कुरान के जो अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दी उसके अमल करो, इंशाअल्लाह इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करने।